हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग 17 सितंबर शिफ्ट 1 करने वाले इंग्लिश का इस सीरीज़ का। सो लेट्स बिगिन। मैं स्विच फुल स्क्रीन हटा देती हूँ। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ ऑफ हर फैमिली। नेसेसिटीज़ ऑफ अ फैमिली को एरर बताना है, मतलब एरर इसको सही करना है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटी, और नेसेसिटी ऑफ हर फैमिली की जगह होना चाहिए नेसेसिटी टू हर फैम द नेसेसिटीज़ टू हर फैमिली. UNESCO works to strengthen an intellectual and moral solidarity of humankind. UNESCO works to strengthen an intellectual and a moral solidarity. Strengthen intellectual. I think an intellectual कोई सेंस नहीं, इसमें आर्टिकल फालतू में लगा है. स्टडी ऑफ कॉइन्स हमें पता है न्यूमिस्मैटिक्स होता है. एफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है, डबल एफ होना चाहिए. The person who is inclined to see the worst aspect of things, who is inclined to, that is pessimist. He will give a lecture on the personality development. A lecture on personality development will be given by him. इसमें ऑप्शंस देखते हैं ए बी सी बी. तो बी से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. ब्यूटिफुली फर्म, नाइस, सिल्की रादर देन थिन एंड वाटरी. इट स्टेज इन शेप एंड स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रूट्स और पेस्ट्रीज विदाउट सोकिंग इन. बी के बाद क्या है? सी. सी, सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज़ अ यूनिक फ्रेश taste and texture. Beautiful, firm, nice, silky rather than thin and watery. It stays in shapes. I think C से start होना चाहिए. C B A. नेक्स्ट, बुली का मतलब होता है किसी को बहुत परेशान करना, यानी ऑप्रेशन. थैंकफुल का साइनोनियम है जो बहुत ही ग्रेटफुल हो, यानी ओब्लाइज्ड. आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, थैंकफुल टू यू. राम वेंट टू डैश, राम वेंट टू बाय एन आइसक्रीम. होमोनियम्स है. डॉक्टर सिन्हा हैज़ ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक, तो कुछ होता नहीं. हैज़ ब्रॉट अ न्यू बुक अबाउट, गलत है. हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स. आई एम समटाइम वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर. The host institution must provide the delegates to with accommodation at a subsidized rates. The occurrence of the lunar eclipse is often, I think occurrence की spelling गलत है, because सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर होना चाहिए. मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. लेबर का सिनोनिम बताना है. लेबर मतलब टॉयल. To the general public, William was best known as a crusader for peace and as an admired critic about for peace and as an admired critic. Crusader for peace and as an admired critics on admires critic on social, political and ethical subjects. In those days, we did not expect luxuries. We were thankful if we could keep the wolf from the door. मतलब avoid starvation. नेक्स्ट है एंटायर का एंटोनिम बताना है. इनकम्प्लीट. नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, नहीं, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क. माई कज़न वर्क्स डे एंड नाइट. वर्क्स डे एंड नाइट मतलब अराउंड द क्लॉक. फीलिंग डिस्करेज्ड यानी इंस्पायर्ड, इसका ऑपोजिट बताना है ना. अब ये क्लोज टेस्ट करते हैं. आई हैव अ रेकरिंग ड्रीम. Actually, I have a few. One is about dismembering a body. I did rather not get into it, but the more pertinent one is about college. But the best pertinent one is about college. It's the end of the semester, and I suddenly realize that there is a class I forgot to attend ever, and now I have to sit for the final exam. I wake up panicked, my GPA in peril. How could I have done this? Why would I so consistently dissatisfy myself, or unpredictability? I think consistently dissatisfy myself. Then I remember that I haven't been in college more than a decade. Someone with distant knowledge of my academic career, bleak knowledge, or I think distant knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not the far removed from the actual collegiate experience, and that at certain times in my life it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for the finals. And well, regardless of what,
रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, आई थिंक यही होगा। देखो इसमें क्लोज टेस्ट मेरे ख्याल से इट्स बिट टफ। मैं मार्क फॉर रिव्यू वाला देखती हूँ। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल, तो आर्टिक इसमें आर्टिकल इसमें सही फालतू यूज़ किया गया है। अक्रेंस में डबल आर नहीं होना चाहिए, सिंगल आर ही होना चाहिए, बिकॉज एकोमोडेशन की स्पेलिंग आई होप इसफुली सही है। बाकी तीसरे में एड्रेस की स्पेलिंग भी सही है और पैरेलल की स्पेलिंग भी सही है, तो ये तो सही है। कंसिस्टेंटली हम सबमिट करते हैं, बिकॉज असली एग्जाम में भी मैं इससे ज़्यादा समय इंग्लिश में नहीं देती हूँ। लेट्स सी हाउ मच आई हैव स्कोर्ड। आई नो क्लोज टेस्ट गलत हुआ होगा, 3 गलत है 42.5। लेट्स सी क्या गलत हुआ है। तो क्या गलत है? 13 नंबर गलत है। अक्रेंस की स्पेलिंग सही, तो फिर इसका मतलब एकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत होगी। ए डबल सी डबल एम ओ, अक्रेंस में डबल सी डबल आर होता है। इसमें क्या है? फर्स्ट, बट द मोर पर्टिनेंट। और 24th इन मैंने क्या लगाया था? डिस्टेंट लगाया था। तो डिस्टेंट, ब्लीक नॉलेज, रिमोट नॉलेज। रिमोट का मतलब होता है स्लाइट और डिस्टेंट। ठीक है, फिर भी बेटर है। फिर भी मेरा गलत तो हुए हैं, क्लोज टेस्ट 2 गलत हुआ और एक तो ये ज़्यादा स्पेलिंग, ज़्यादा दिमाग, कन्फ्यूजन, रिस्क 50-50। So this is my score out of 50, 42.5. So please do share your score in the comment section and make it more interactive. और बाकी मैं टेलीग्राम पे इनके वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। इफ़ एनी वन मिसेस द वीडियो तो वो टेलीग्राम से जाकर लिंक देख सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।